एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंदो सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै त अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस, निमख ना बिसरो तुमको हर हार, निमख न बिसरो तुमको हर हार, सदा पजो जगदीश पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस। जे सिमरत सब किल विक नासे, इतरी होए उदारो, जे सिमरत सब किल विक नासे, इतरी होए उदारो, सो हार हार तुम सद जाका अंत न पारो, सो हार हार तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस, निमख न बिसरो तुमको हर हार, निमख न बिसरो तुमको हर हार, सदा पजो जगदीश पूता, माता की आसीस।
माता की आसीस पूता, माता की आसीस। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीरतन नीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीरतन नीत। भोजन कीरतन नीत पूता, माता की आसीस। माता की आसीस पूता, माता की आसीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश पूता, माता की आसीस। माता की आसीस पूता, माता की आसीस। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूरन आशा, कबहे न व्यापे चिंता। रंग तमाशा पूरन आशा, कबहे न व्यापे चिंता। कबहे न व्यापे चिंता पूता, माता की आसीस। माता की आसीस पूता, माता की आसीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश पूता, माता की आसीस। माता की आसीस 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 पूता, माता की आसीस।
प्यो पर हर नहावणा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावणा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नावणा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावणा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावणा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटा, तुम्हारा धरती पर जाने का समय आ गया है। भगवान बालक से कह रहे हैं, बेटा तुम्हारा धरती पर जाने का समय आ गया है। बच्चा रो पड़ता है, उदास हो जाता है कि हे भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। धरती पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं किसी को नहीं जानता धरती पर। भगवान कहते हैं, बेटा तेरे लिए मैंने एक फरिश्ता भेजा है धरती पर, तुझसे पहले, जो तेरा ख्याल रखेगा। बालक कहता है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ चाहिए होगा, कौन समझेगा कि मुझे कब क्या चाहिए? मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा? मुझे कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है?
भगवान कहते हैं बेटा, जो फरिश्ता तुम्हारे लिए धरती पर भेजा है, तुम्हें उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा चेहरा देखकर वो समझ जाएगा तुम्हें कब क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक फिर सवाल उठाता है, मुझे दुनिया की समझ नहीं है। धरती पर बड़ी सारी मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी जीवन में, कौन सोझी देगा, कौन रास्ता दिखाएगा। भगवान कहते बेटा वो फरिश्ता, बस उसके कहे में रहना, वो जैसा कहे वैसा करते जाना, तेरी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक कहता है, हे भगवान, मुझ पर कोई बड़ी मुसीबत आ गई, मेरी जान पर बनाई, कौन मेरी रक्षा करेगा। भगवान कहते हैं मुस्कुरा कर, बेटा वो फरिश्ता तेरी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगा और तुझे आंच नहीं आने देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में वो बालक कहता है, सब कुछ ठीक है भगवान, पर तेरे दर्शनों के बिना मैं उदास हो जाऊंगा। मैं जब उदास हो जाऊंगा तेरे दर्शनों के बिना, वो प्यास मेरी कैसे मिटेगी। तो भगवान कहने लगे, जब तुझे मेरे दर्शनों की प्यास जागे, जब तू उदास हो जाए, उस फरिश्ते का चेहरा देख लेना। उस फरिश्ते के चेहरे में मैं ही तुझे दिखाई दूंगा और तेरी उदासी खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान कहते तेरे जाने का समय हो गया, जा अब। बालक कहता है, एक बात बता दो, उस फरिश्ते का नाम तो बता दो जिसके पास आप भेज रहे हो मुझे। भगवान कहता है, नाम मायने नहीं रखता, नाम मायने नहीं रखता, पर धरती पर तो उसे माँ कह के बुलाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ, माँ को गुरबाणी में भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान से पहले माँ, जो बिना बोले सब समझ जाती है, बिना कहे सब जानती है, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ, आज के जीवन में ये सोझी बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। आज के जनरेशन अपने माता पिता का सत्कार नहीं करती और ये इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा पाप है कि इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचिए बाबा नंद सिंह जी के ये कीमती वचन, इतना कमाल के कीमती वचन कि अगर पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे और शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले। ध्यान देना, बड़ा कीमती वचन है बाबा नंद सिंह जी का। पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे और शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले। उसे किसी जप तप की जरूरत नहीं, उसे कोई साधन अपनाने की जरूरत नहीं। वो क्या भगवान के दर्शन मांगेगा, ऐसे बालक के, ऐसे शिष्य के, ऐसी पत्नी के भगवान दर्शन करने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात कह दी बाबा नंद सिंह जी ने। जन्मों की घाल ना घालनी पड़ती है प्रभु को पाने के लिए, पर यहाँ पर कह दिया 3 भ पढ़ लिए। भ का मतलब क्या होता है? बब्बा भला जी, बब्बा भूला जी, बब्बा भाना जी। जो कहो सत बचन जी, जो करे सत बचन जी, डांट दे सत बचन जी। और भाना, वो जो भी करे सत बचन जी,
कोई गलती हो जाए डांट दे, भूल गई जी, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, भूल गया जी। बड़ा मुश्किल है, बड़ी ध्यान से विचारने इस बात को। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा कि पुत्री पिता के आगे, नहीं, पुत्र पिता के आगे। जो जिसके लिए मुश्किल है वो बात कही है। बेटा पिता के आगे बोलता है, पिता का पुत्र से प्यार होता है, पर बेटा अक्सर बोलता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कहा है बेटा पिता के आगे 3 भ पड़े, भला जी जो कहो ठीक है जी, जो करो ठीक है जी, डांट दो तो भी ठीक है जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जप तप करने की जरूरत नहीं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, गुरु नानक दर्शन देने नहीं करने आएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्नी का पति के आगे बड़ा मुश्किल होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्नी का लड़की का पिता के आगे नहीं कहा, लड़की का पति के आगे कहा है, 3 भ पढ़ ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा मुश्किल है, और जो कर ले किसी जप तप की जरूरत नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य का गुरु के आगे, यहाँ पर हम सब आ गए। जिसने गुरु का हुक्म मान लिया, सर माथे पे रख लिया, गुरु जो करे भाणा, गुरु डांट दे जय गुरु चिड़के तब मीठा लागे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कहे अमृत वेले उठो तो उठूंगा, बस बात खत्म। गुरु कहे मांस नहीं खाना, नहीं खाऊंगा, बात खत्म। सवाल नहीं कि क्यों, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ये 3 काम कर ले, 3 में से 1 कर ले, बाबा नंद सिंह जी के वचन। किसी जप तप की, किसी पाठ पूजा की, किसी नित्यनेम की, किसी चीज की जरूरत नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का शब्द श्रवण कीजिए, कितनी कीमती पंक्तियां हैं। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, हमें ताने मार रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। माँ प्यो पर हर नहावना, आज के युग में इसकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। माता पिता को छोड़कर, माता पिता की सेवा छोड़कर तो तीर्थों पर स्नान करता फिरे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं ये ऐसा है जैसे तू घूमने गया पिकनिक पर, तीर्थों पर नहीं गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव कोई फल नहीं मिलने वाला तुझे, कुछ भी कर ले, दुनिया के सारे नेक काम कर ले, इबादत तक कर ले, अगर माता पिता की सत्कार नहीं करता, माता पिता को छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर तू कुछ भी करता है, उस चीज का कोई फल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब, गुरदास जी ने जब ये लिखा है ना, तो उसकी हेडलाइन दी है कि माँ प्या दे अपकारी दे जप तप निष्फल हन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो माता पिता को छोड़कर चाहे जप करे चाहे तप करे, उसका कोई फल नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता पिता, माता पिता क्या होते हैं, माता पिता का क्या दर्जा है, माता पिता की सेवा करके क्या मिलता है और सेवा ना करके क्या होता है। हजरत मोहम्मद साहब माता के बारे में क्या कहती है, गुरबाणी क्या कहती है। आइए इतने सारे पक्षों पर विचार करें और बड़ी ध्यान से आज के प्रकरण को श्रवण करने की कोशिश करें, बड़ी ध्यान से। खास करके जो बच्चे हैं उन्हें इस बात को समझना होगा, वरना जीवन में ठोकरे ही ठोकरे हैं माता पिता के आशीर्वाद के बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक माँ की आशीष बच्चे के सितारे पलट के रख देती है, जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देती है। माँ के हृदय से निकली हुई आशीष, बाबा नंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ के हृदय से बच्चे के लिए बद आशीष तो निकल ही नहीं सकती, पर जब बच्चे माता के साथ अनादर करते हैं, पिता के साथ अनादर करते हैं, तो परमेश्वर को नहीं भाता वो, उसकी सजा वहां से मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सृष्टि सजा देती है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, माता पिता का सत्कार नहीं, दुनिया तेरा सत्कार नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावड़ा,
68 तीरथ कुम्मणवाणी माँ प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुम्मणवाणी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर सुने वेद, इस वार की पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। माँ प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, माता पिता की सेवा छोड़कर, बड़े ध्यान से इस पॉइंट को सुनना साथ संगत जी। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैसेजेस आते हैं, भाई साहब आप जो कथा करते हो ना, अभी थोड़ी गहरी कथा करनी शुरू कर दिया, समझ में नहीं आती। वो कहानियां सुनाया करो ना, जैसे आप सुनाते थे कभी कभी पहले, थोड़ी समझ में आ जाए बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि हर एक का वो लेवल नहीं कि कुछ बातें समझ सके, और इसके पीछे का कारण भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं। इसे समझें कि हमारी समझ में ये बातें क्यों नहीं आती, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। एक तो होता है, देखिए कोई नया नया जुड़ा है, अब बाणी सुननी पढ़नी शुरू की है, उसे नहीं समझ में आता, इट्स एक्सेप्टेबल, बात समझ में आती है। कई सालों से कोई सुन रहा हो कीर्तन, फिर भी अगर बात समझ में नहीं आ रही, नित्य भी कर रहा है, अमृत वेले भी उठ रहा है, तो उसका ये दोष है जो भाई साहब भाई गुरदास जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गहरा ज्ञान समझ में नहीं आता, बाणी की गहराई पकड़ में नहीं आती, तो भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं उसकी वजह यह है क्या, माँ प्यो पर हर सुने वेद। माता पिता की सेवा छोड़ के वेदों का ज्ञान समझने की कोशिश करता है, वेदों को सुनता है, शास्त्रों को सुनता है, भेद ना जाने कथा कहानी, वो उसका भेद कभी पा ही नहीं पाएगा। गहरा भेद जो वेद कहना चाहते हैं, उसके लिए वो एक कहानी बन के रह जाएगी बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना बड़ी गहराई से। एक पंक्ति का एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। भावार्थ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, जो जितना गहरा उतरेगा उतना गहरा अर्थ निकाल कर ले आएगा, बाणी का उतने कीमती मोती निकाल के ले आएगा। जो माता पिता की सेवा छोड़कर ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो। कृष्ण जी ने कर्ण से कहा था कि तूने जब ज्ञान पाने की कोशिश की थी, आज तेरा ज्ञान साथ क्यों छोड़ रहा है पता है? कर्ण का ज्ञान उसका साथ छोड़ गया था जब अर्जुन से आखिर में युद्ध हो रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, ना कोई मंत्र, ना कोई शस्त्र चलाने की विद्या, कुछ सब भूल गया। रोने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे गुरु का श्राप है। तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, ये तेरे गुरु का श्राप नहीं, ये सृष्टि का नियम है। जो इंसान विद्या पाता है, ज्ञान हासिल करता है, पर उसके पीछे कारण लोक कल्याण नहीं है, केवल प्रतिस्पर्धा है, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, पर उसके मन में ये भावना नहीं है कि मैं ये ज्ञान हासिल करके किसी की मदद कर सकूंगा, तो ये सृष्टि का नियम है, जब जरूरत पड़ेगी ये ज्ञान साथ छोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कोई भी फील्ड में हो, कोई भी ज्ञान हासिल कर रहे हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए, सोच ये होनी चाहिए, चाहे मैं इससे पैसे कमा कर किसी की मदद कर सकूं, चाहे इस ज्ञान को मैं दूसरे को देकर उसकी मदद कर सकूं। मन में ये भावना होगी तो ये ज्ञान फलदायक होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर कहा है माता पिता की सेवा छोड़कर चाहे तू कितने भी वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कीर्तन सुन ले, ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर ले, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, तू गहरा उतर ही नहीं पाएगा।
तेरे लिए वो एक कहानी रह जाएगी कि एक राजा थी, एक रानी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना गहरा पॉइंट है साथ संगत जी। माता पिता, माता पिता, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। जहां जहां भी गुरबाणी में ये बात आई है ना कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, गुरु नानक का स्वभाव कैसा है, निरंकार का एक ओंकार का स्वभाव कैसा है, तो बार बार उसकी तुलना माता और पिता से की गई है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जीव प्राण सुखदाता। माता पिता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रामैया हो बारक तेरा, हे भगवान मैं तेरा बालक हूँ, काहे न खंडस अवगुण मेरा। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस देते। है भगवान, मेरी माता तो मेरे अपराध नहीं देखती, तू क्यों देखता है, तू भी तो मेरी माँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान को माँ का दर्जा, माँ को भगवान का दर्जा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुंभड़वाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुंभड़वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा प्रकरण सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। आज सोचे सोच न होवे का आखिरी दिन है। गुरु दास बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रुक रहा है, नहीं तो सोचा सोच न होवे पर ही चालिया हो सकता है। इतने इसके गहरे पॉइंट्स है, पर आगे भी बढ़ना है। इसलिए आज, क्योंकि माता पिता को भी तीर्थ का दर्जा दिया गया है बाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ, कोई माता पिता की सेवा कर ले, सारे तीर्थों का फल उसकी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और माता पिता को छोड़कर चाहे कितने भी तीर्थों का स्नान कर ले, श्रवण कर रहे हो आप बार बार, कि वो तीर्थों पर नहीं गया है, घूमने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे आगे, माँ प्यो पर हर करे तप, वनखंड पुल्ला फिरे बिबाणी। कोई माता पिता की सेवा छोड़कर तप करने चला जाए जंगलों में, कोई माता पिता की सेवा छोड़कर तप करने चले जाए जंगलों में। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं ऐसे है जैसे वो रास्ता भटक गया और जंगल में खो गया और भटक रहा है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वनखंड पुल्ला फिरा बिबाणी, वो भूल गया है रास्ता और जंगल में भटक रहा है सारी जिंदगी। भाव तप नहीं कर रहा, वो रास्ता ही भटक गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते भटकने वाले की क्या हालत होती है, जो मंजिल तक ना पहुंच पाए, टूट कर गिर कर खत्म हो जाता है।
हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक मिसाल आती है इतिहास में। एक बालक, जवान लड़का, जिसकी बूढ़ी माँ है, बुजुर्ग माँ है, उसकी सेवा करता है। माता का कोई भी नहीं है ध्यान रखने वाला। पिताजी चल बसे, माँ बुजुर्ग है, बूढ़ी है, अपने आप कुछ नहीं कर सकती, ये बेटा ही संभालता है। पर बेटा बड़ा लायक है, नाम जपने वाला, रात भर इबादत करता है, दिन में माता की सेवा भी करता है, काम भी करता है। और इबादत का रंग इतना चढ़ा कि उसे मन किया उसका बार बार कि मैं हज कराऊं, खुदा के घर के दर्शन कराऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इबादत कर करके रंग चढ़ गया, मन कर रहा है दर्शन करने का। एक दिन माता से कहता है, माता मेरा जाने का मन कर रहा है, चला जाऊं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बेटा तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। तू चला जाएगा मेरा क्या होगा? मेरे मरने का इंतजार कर ले, जब मैं मर जाऊं तब हज कराना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा मायूस हो गया, कुछ कहा नहीं माँ के आगे। इस प्रकार 2-3 बार बेटे ने माता से बात की। माता हर बार ये कह के रोक देती। अब बेटे से नहीं रहा गया, बिना बताए एक दिन रात को घर से चला गया हज की यात्रा पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता को पता चला, क्या कर सकती है, आंखों में आंसू आ गए, कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ के हृदय से कभी बदआशीष नहीं निकल सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये बात खुदा को नहीं भाई, खुदा को कैसे भा सकती है? बालक से क्या कह रहे हैं भगवान? कि उस फरिश्ते का नाम माँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो धरती पर मैंने तेरे लिए भेजा है। और उस फरिश्ते को कोई उसकी सेवा छोड़कर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर बैठा रहे, कोई लाभ नहीं, वरना उल्टा पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, उसकी खुशी से, उसकी इजाजत से जाए जरूर। अब यहाँ पर घटना क्या घटती है? वो जा रहा है, सफर तय कर रहा है, कई दिनों का सफर है। रास्ते में एक गांव आया, मस्जिद आई। वो मस्जिद में सिजदा करने चला गया। अजान का समय, सिजदा करने बैठ गया। एक चोर चोरी करके भागा, लोग पीछे पड़े हैं। चोर मस्जिद में दाखिल हुआ। इस नौजवान को देखा कि ये अपनी इबादत में मग्न है, इसके थैले में चोरी का सामान डाल दिया और चोर भी सिजदा करने बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब लोग आए, सबकी चेकिंग हुई तो इसके थैले में से वो चोरी का सामान निकला। काजी के पास ले जाया गया। काजी ने कहा, इतना बड़ा अपराध, चोरी इतना बड़ा अपराध नहीं है, पर चोरी करने के बाद नमाज के एवज में, सिजदे के एवज में छिपना, ये कितना बड़ा अपराध है ये नहीं जानता। इसने नमाज का नाम खराब किया है कि चोरी से बचने के लिए नमाज का सहारा लिया, सिजदा कर रहा है खुदा को। लोगों का नमाज में से विश्वास उठ जाएगा। इसकी सजा ये है, वैसे तो चोरी की सजा केवल हाथ काटना है हमारे यहाँ, इसके पैर भी काटो, इसकी आंखें भी निकाल लो और सारे शहर में घुमा के, गांव में घुमा के डिंडोरा पीट के बताओ कि चोरी करने के बाद जो नमाज का सहारा ले, सिजदे का सहारा ले, उसकी सजा ये है। जो बंदगी को बदनाम करे। तो ये बोल उठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे हाथ काटो, मेरे पैर काटो, मेरी आंखें भी निकालो, पर डिंडोरा पीट के ये मत कहो कि चोरी करके नमाज का सहारा लेने की वजह से इसे ये सजा मिली है। नहीं, कहो ये कि जो माता की सेवा छोड़कर हज को जाते हैं, खुदा उन्हें ये सजा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो घर में माता बैठी है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया
कि मैं तो बंदगी करने जा रहा हूं, मैंने अपराध किया नहीं, ये सजा मुझे क्यों मिली? माँ की सेवा छोड़कर इबादत करेगा, माँ की सेवा छोड़कर हज पर जाएगा, तो ये सजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी इसीलिए बार बार एक एक पंक्ति में समझा रहे हैं, माँ प्यो पर हर, जो माता पिता को छोड़कर कोई भक्ति करने जाए जंगलों में, वो भक्ति नहीं, वो भटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे तप, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाणी, माँ प्यो पर हर करे तप, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाणी, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मण वाणी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मन वाणी, गुर परमेश्वर सार न जाने। सारे धार्मिक कार्य कर रहा है पर धर्म की सार नहीं जानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव तो परमेश्वर के रास्ते पाने के रास्ते को समझ ही नहीं पाया कि पाना कैसे है। परमेश्वर को छोड़कर कैसे कोई परमेश्वर को पा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देवना सेवक माणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करता है, सेवा करता है, कोई लाभ नहीं होगा। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक माँ माता की मूर्ति के आगे लड्डुओं का भोग लगा रही है। एक माँ माता की मूर्ति के आगे लड्डुओं का भोग लगा रही है। बालक आया छोटा, लड्डू उठा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ कहती बेटा नहीं, पहले माता भोग लगाएगी, पहले माता खाएगी, फिर हम खाएंगे। अगर पहले खा लिया हमने तो पाप लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटा सा बालक नादान है पर सच बोलते हैं ना बच्चे। उसने सच बोल दिया। कह लगा माँ फिर तो आपको बहुत पाप लगता होगा रोज। माँ कहती मुझे क्यों पाप लगता होगा, मैंने क्या किया है? कह लगा नहीं, दादी माँ हमारी माता है ना,
आप सबसे आखिर में उन्हें देते हो, पहले खुद खाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको रोज कितना पाप लगता होगा। ये सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब जानते हैं कि ये सच है। आज के युग में जो लोग अपनी माता का सत्कार नहीं करते, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, घर में अपने बुजुर्गों का सत्कार नहीं करते, माँ प्यो पर हर करे पूज, अपने माता पिता की सेवा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करता है। सब कुछ जायज है अगर माता पिता की सेवा करते हुए करे तो। माता पिता की सेवा करते हुए करे तो थोड़े के का भी फल बहुत ज्यादा है, और छोड़कर करे तो चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, जीरो है। मैं नहीं कह रहा, भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, वेद शास्त्र कह रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, कुरान शरीफ तक ये कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिसे अपनी माता में भगवान नहीं दिखाई दिया, वो मूर्ति में कहाँ ढूंढने घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मण वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीर्थ कुम्मन वाणी। तू तीर्थों पर स्नान करने नहीं गया है, तू हज करने नहीं गया है, तू हरमंदिर साहब नहीं गया है, तू घूमने गया है, पिकनिक मनाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि तुझे तीर्थों पे स्नान करना है ना, हज ही करना है ना, तुझे उसका फल चाहिए ना। कहते आ मैं तुझे तरीका बताता हूँ, घर बैठे कैसे तेरा तीर्थ हो, कैसे तेरा हज हो, कैसे तू गुरु रामदास जी के सरोवर में स्नान कर सकता है घर बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना। माँ दे चरना च सिर रख देना, घर बैठिया जिन्हां ने हज करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हज करने का मन करे, माँ के चरणों में अपना सर रख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
इसको थोड़ा गहराई से समझ लेना। माँ के चरणों में सर रखने का मतलब ये नहीं कि केवल सर चरणों में रख दो हज हो गया। उनकी खुशी प्राप्त करना, उनकी आशीष लेना। हृदय से आशीष पता कब निकलती है? जब हृदय में प्रसन्नता हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ का हृदय कभी प्रसन्न होता है जब पुत्र बात मानता है, बेटा माँ के बताए हुए रास्ते पर चलता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस रास्ते पर चलकर माता को खुशी हो वो रास्ते पे चलो। जिस रास्ते में चलकर पिता पर खुशी हो। कोई ये ना सोचे कि मैं पिता का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर माता पिता दोनों की बात की गई है। दास ने पहले भी कई बार बताया है कि पिता का दर्जा माता का दर्जा बराबर कहा है वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता का पहले दिया है कि माँ के जैसा कोई नहीं, पर पिता को कमतर नहीं कहा है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जब हाथ में सुई चुभ जाए तो आदमी कहता है ओए माँ। छोटी मोटी चोट लग जाए तो अपने आप निकलता है ओए माँ, पर अगर एक्सीडेंट से बच जाओ, ट्रक से बच जाओ तो निकलता है बाप रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी मुसीबत में पिता ही याद आता है, माँ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर बैठे तीर्थों का स्नान हो सकता है, घर बैठे हज का पे फल प्राप्त किया जा सकता है अगर माता पिता की सेवा कर ले कोई। भगत तुलसीदास जी बड़े प्यारे बात कहते हैं यहाँ पर। कहते हैं जिन मात पिता की सेव किए। आइए गाकर पढ़े इसे। जिन मात पिता की सेव किए, जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीरथ व्रत किए ना किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने माता पिता की सेवा कर ली वो तीर्थों पर जाए या ना जाए, सारे तीर्थों के स्नान का फल उसकी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। माता पिता की सेवा छोड़कर माता पिता को वृद्ध आश्रम में रखा हो और बाहर जाकर दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेईमान है, अज्ञानी है वो प्राणी। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं उसका कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं। एक छोटी सी घटना याद आ गई जो दास ने अखबार में पढ़ी थी, पेपर में। कि वृद्ध आश्रम में एक आदमी एक औरत को लेकर पहुंचा। बुजुर्ग औरत है और वृद्ध आश्रम वालों से कहता है कि ये रास्ते पर मुझे मिली है, इसे यहाँ पर छोड़ने आया हूँ, आप रख लो। वो औरत पास में बैठी है। वो वृद्ध आश्रम वाले पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? वो बता देती है। कहती आपके बेटे का नाम क्या है? वो नहीं बताती है। सरनेम क्या है? नहीं बताती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बहुत पूछने पर नहीं बताती। वो आदमी कहता छोड़ो ना, आपको क्या लेना है सरनेम से और उसके बेटे से, आप इसे यहाँ दाखिल करो, कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं सेवा कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनाथ आश्रम वाले उस औरत को रख लेते हैं और आदमी चला जाता है। कहते कितना अच्छा आदमी था, एक बुजुर्ग औरत को यहाँ पे दाखिल करा गया, कितना दयावान था, पैसे भी खर्चने को तैयार था उसके लिए। और कुछ साल बाद जाके पता चला जो छोड़ने आया था वही उसका बेटा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उससे पूछा गया कि तुमने सरनेम क्यों नहीं बताया, माँ का हृदय देखो। माँ से पूछा गया तूने सरनेम क्यों नहीं बताया, उसका बेटे का नाम क्यों नहीं बताया? कहने लगी नहीं, अगर मैं सरनेम बता दूं, बेटे का नाम बता दूं तो सोसाइटी में मेरे बेटे का नाम खराब हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बच्चा जो अपने माँ को घर से निकाल रहा है,
जिसने जन्म दिया, जिसने चलना बोलना सिखाया, जिसने सब कुछ किया, उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर गया। और माँ का हृदय देखो, बदआशीष तो छोड़ो, उसे अभी भी चिंता है कि मेरे बेटे का नाम ना खराब हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसीलिए भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, ऐसी माता पिता को छोड़कर माँ प्यो परहर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलाड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे व्रत रख ले, चाहे कोई धार्मिक काम कर ले, कोई लाभ नहीं होगा। माता पिता की सेवा छोड़कर चाहे जो मर्जी कर ले, 84 लाख योनियां तेरे लिए तैयार खड़ी है। माँ प्यो पर हर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलानी। माँ प्यो पर हर व्रत कर, मर मर जम्मे परम पुलानी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ उम्मणवाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो गुरु नानक पातशाह ने कहा है, ये पंक्तियां कहनी पड़ी उन्हें कि जीवत पितर न माने को मुँह श्राद्ध कराही, जीते जी पानी का ग्लास नहीं पूछा, मरने के बाद खीर पुड़िया खिला रहा है, व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब एक कमाल की बात कहते हैं, कमाल का पहलू है साथ संगत जी। हजरत मोहम्मद साहब जिनका सारा जीवन लोगों को सबसे मेन शिक्षा जो उनकी थी ना, जैसे गुरु नानक पातशाह की 3 बातें सबसे मेन है, धर्म की कीर्त करना, नाम जपना और बांट के खाना। मोहम्मद साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुसलमानों से कही वो ये थी कि 5 वक्त की नमाज अदा करना नहीं छोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नमाज अदा करते हुए, सजदा करते हुए अगर तुम्हारा कोई कत्ल भी कर दे तो नमाज में से नहीं उठना, ये उनकी हिदायत है। इतनी जुड़कर नमाज करनी है कि चाहे कोई कुछ भी करता हो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। और वही हजरत मोहम्मद साहब माँ की अहमियत कैसे बताते हैं ये सुनिए, जिन्होंने सारा जीवन नमाज अदा करने पर जोर दिया और कैसे करनी उस पर जोर दिया कि कोई कत्ल भी कर दे तो बीच में नहीं उठना। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं माँ क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं मेरा घर मस्जिद के सामने हो, मैं मस्जिद में नमाज अदा करने गया हूँ, बैठ गया हूँ, नमाज अदा करनी शुरू कर दी मैंने, मेरे घर का दरवाजा खुले और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे मोहम्मद, तो मैं नमाज बीच में छोड़कर
माँ के पास दौड़ कर चला जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब हैरान हुए कि ये क्या कह रहे मोहम्मद साहब के नमाज कत्ल कर दो तो भी नहीं उठना है, और माँ आवाज दे तो। मोहम्मद साहब कहने लगे जब खुदा ने ही बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब खुदा ने ही बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी है। माता पिता की निरादरी करके कोई गुरुद्वारे 24 घंटे सेवा कर ले, 24 घंटे नाम जप ले, व्यर्थ है, 100% व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी खुशी लेकर 1 घंटा भी सेवा कर ले कोई, 1000 गुना फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन घरों में माता पिता की सेवा नहीं होती, उनकी निरादरी होती है, उस घरों से, उन घरों से बरकत चली जाती है। बरकत का मतलब समझते हो? कई लोग समझते हैं धन आना बंद हो जाता है। नहीं भाई, धन चाहे कितना भी आ जाए, बरकत कुछ और होती है। जिस घर में बरकत हो, थोड़ा धन भी सुख शांति रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस घर से बरकत चली जाए, वहां पे करोड़ों रुपए आते हों, लोग परेशान, मन सड़े हुए, जले हुए, अशांत, परेशान आत्माएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना है, ये बहुत बड़ी शिक्षा देती है, बहुत बड़ी। बाबा नंद सिंह जी बैठे हैं, समाधि में स्थित हैं। बाहर सेवादार से झगड़ने की आवाज आ रही है किसी की, और वो जोर जोर से कह रहे हैं सेवादार से कि बाबा नंद सिंह जी हमारे गांव के हैं और आप लोगों ने कब्जा करके रख दिया, मिलने नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस गांव का कोई हो तो उसे अपना होता है ना कि हमारे शहर का ये कोई बड़ा आदमी। बाबा नंद सिंह जी जिस गांव से हो, क्यों ना मान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के कानों में आवाज पड़ी, मुस्कुरा पड़ी। सेवादार से कहा कौन है? कहने लगे पातशाह चंदन सिंह है आपके गांव का, और बड़ी होशियारी मार के कह रहे हैं कि आपके गांव का है, हमें जाने दो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे बुला ले उसे अंदर। आगे अंदर माथा टेका, जो लाया था आगे रखा, तिल फूल प्रसाद जो भी लाया था, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ये वचन किया करते थे। और सारे गुरु महाराज का ये उपदेश है, एक्चुअली जितने गुरुओं का भी उपदेश है कि कभी संतों महापुरुषों के पास खाली हाथ नहीं जाते, चाहे वो कितना भी कहें, खाली हाथ नहीं जाते। कहते थे अगर समर्था नहीं है ना तो स्वादी, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते, स्वागी चूंटी ले जाओ। भाव के बर्तन धोने, पुराने जमाने में ना जो राख होती थी ना, लकड़ियां जल के चूल्हे की राख, उससे बर्तन मांजे जाते थे, धोए जाते थे। कहते थे वो स्वाई थोड़ी सी ले जाओ, कुछ नहीं है तो। पर संतों महापुरुषों के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तिल फूल आगे लाके रखा था, माथा टेका, वो रोने लगा। बाबा नंद सिंह जी कहने क्या हुआ चंदन सिंह, बता तो सही। कहने लगा पातशाह पता नहीं क्या हो गया है, जिस काम में हाथ डालता हूँ नुकसान हो जाता है, सोने में हाथ डालता हूँ मिट्टी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, एक गाय खरीदी इतनी महंगी कि दूध देगी, और सही दूध देती थी। हमारे घर में आते ही दूध देना बंद कर दिया। कितना इलाज कराया, कितना पैसा खर्च हो गया। सोचा था बच्चे दूध पियेंगे, मक्खन खाएंगे, घर में से बरकत ही चली गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे भाई नित्यनेम करता है, अमृतवेला संभालता है। कहने लगा पातशाह आपकी संगत है, अमृतवेला तो सारा परिवार संभालता है, नित्यनेम भी पक्का है। बाबा नंद सिंह जी गंभीर हो गए, आंखें बंद की उन्होंने। आंखें खोल के कहते हैं माता पिता की सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप कर गया, कोई जवाब नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहने जवाब क्यों नहीं देता? कहते पातशाह पिता तो कब से चल बसे, माँ घर में कमरे में बैठी रहती है, उसे 2 रोटी दे देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे 2 रोटी तो लोग कुत्ते को भी डाल देते हैं। मैंने पूछा सेवा करता है माता की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी हाल पूछा है, कभी पास में बैठा दुख सुख बोला है, उसे किस चीज की जरूरत है, वो प्रसन्न है तुझ पर?
चुप कर गया। कहने लगा वैसे सच कहूँ मन तो बड़ा करता है माता की सेवा करने का, पर घर वाली ऐसी ही मिली है ना, अगर थोड़ा भी माँ के पास जाता हूँ झगड़ा करने लग जाती है, वो कुछ करने नहीं देती। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जिस घर में माँ का सत्कार नहीं, जिस घर में माता को 2 रोटियां डाल दी जाती है, उस घर में बरकत कहाँ से आए। एक गाय नहीं 10 गाय खरीद ले, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी नित्यनेम कर ले, तेरे घर में बरकत नहीं आ सकती जब तक माता की आशीष तुझे नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे पाशाह मैं क्या करूं। कहने लगे घरवाली को जाके समझा, पता कि माता पिता की सेवा करने का प्रण करे, आज ही गाय दूध दे देगी और तेरे सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे हर रोज। और माँ की आशीष लिए माता पिता की सेवा दिल से करे, वो भी और तू भी। चला गया, घर में जाके बैठ गया। घर वाली पूछती क्या कहा बाबा इसने। वेट कर रही थी कि वापस आएंगे, इंतजार कर रही थी कि वापस आएंगे, पूछूंगी, पर ये जवाब नहीं दे रहा। 2-3 बार पूछा। कहने लगे मैं तुझे कहूंगा तो सही बाबा नंद सिंह जी ने क्या कहा, पर तू कर नहीं पाएगी, इसलिए तू पूछ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगी आप बताओ तो सही, मैं सब कुछ करूंगी, घर में बरकत आ जाए, गाय दूध देने लग जाए। तो चनन सिंह ने कहा बाबा नंद सिंह जी ने ये बात कही है कि माता की सेवा करनी पड़ेगी, वो भी हृदय से, दिल से, तन मन से। कर सकती है तो हाँ कर, नहीं तो पूछ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सच है, मैंने माता का कभी सत्कार नहीं किया, ना ही आपको करने दिया, उसी की सजा है शायद। मैं प्रण करती हूँ कि आज के बाद माता के तन मन धन से सेवा करूंगी, वो जो कहेंगे उसको उनकी आज्ञा में रहूंगी, पर घर में बरकत आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन इतिहास में लिखा है। चंदन सिंह ने, उसकी घरवाली ने बाल्टी गाय के नीचे रखी और गाय ने सारा दूध उतार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त सबसे पहले बड़ा कटोरा भर के दूध लेकर गए माता के पास। बेटा और बहू दोनों जाकर कहते माता दूध पी लो। माँ बड़ी हैरान, आज तक पानी नहीं पूछा, ये दूध लेकर आए। कहने लगे बेटा क्या हो गया आज। कहते माता हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, आज के बाद हम तेरी निरादरी नहीं करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, तू जैसा कहेगी वैसा करेंगे, पर तू दूध पी ले, हमें सेवा करने दे, पुरानी हमारी भूलों को बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ का हृदय है, कहाँ उसके हृदय में कोई बेटे के प्रति कुछ होगा, माँ ने तो बख्श ही दिया होता है। कहने लगी बेटे पर बात बता, तुझे अचानक हुआ क्या है। कहने लगे बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि जिस घर में माता पिता का सत्कार नहीं, वहाँ बरकत नहीं रहती। माँ कहने लगी धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी, जिन्होंने कैसे सही रास्ते पर जोड़ा उनके बेटे को। देखिए कितनी कमाल का पहलू, बाबा नंद सिंह जी ने अपने से नहीं जोड़ा। आज के ज़माने में किसी परख ना हो, ये परख होती है महापुरुषों की कमाई वालों की। आज के ज़माने में किसी के पास जाओ, मैंने खुद देखा है कि ये तकलीफ है, कहते इतने की सेवा कर दो, यहाँ पर सेवा चालू, वो सेवा कर दो, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने जोड़ा कहाँ, माता की सेवा से। सबसे पहला सवाल क्या पूछा, अमृत वेला है कि नहीं, नित्यनेम करता है कि नहीं, जीवन पर नजर है। माता की सेवा से जोड़ा, अपने से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले गुरु से जोड़ा, फिर माता पिता से जोड़ा। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन है, फिर से सुन लो। पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे, शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले, किसी जप तप की जरूरत नहीं, सारी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी बिना किसी और घालना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नावड़ा 68 तीरथ कुंमणवाणी। माँ प्यो पर हर नावड़ा
68 तीरथ कुम्मण वाणी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे हैं। सोच का भाव यहाँ पर स्नान, तीर्थों का स्नान, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, चाहे कोई 1,00,000 बार कर ले, जे सोची लखवार, तेरे हृदय की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हृदय की मैल कैसे उतरेगी? गुरबाणी में कई प्रकार बताए हैं। सतगुरु की को तीर्थ का दर्जा दिया है, नाम को तीर्थ का दर्जा दिया है, सतसंगत को तीर्थ का दर्जा दिया है, साधु को तीर्थ का दर्जा दिया है, माता पिता को तीर्थ का दर्जा दिया है, दया को तीर्थ का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ये है असली तीर्थ। इनमें से एक भी अपना लिया तेरा कल्याण हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता, माता पिता एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी गहरी शिक्षा देने वाली है। हजरत मूसा हुए हैं, उनका स्वभाव बड़ा क्रोध वाला स्वभाव था उनका। खुदा की तरफ से इख्तियार था खलकुत को उपदेश देना, पर क्रोधी स्वभाव होने की वजह से कईयों को कड़वे बोल देने, कईयों का मन दुख जाना, कईयों का हृदय दुखा देना, और तो और कई बार खुदा से झगड़ पड़ते थे। खुदा से सीधी बात थी उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो खुदा को भी क्योंकि लाड में थे, कुछ ना कुछ कई बार कह देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और खुदा की तरफ से उन्हें इख्तियार था कि जाके खलकत को सही रास्ता दिखाना, कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्रोधी स्वभाव होने की वजह से कड़वे बोल देते थे, कईयों का दिल दुख जाता था कई बार। एक दिन वो घर से बाहर निकल रहे हैं खलकत को उपदेश देने, बहुत सारे लोग साथ में। जब अपने घर से बाहर निकलने रहे, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो एक आवाज आई खुदा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूसा, आज जरा ध्यान से बोलना, आज बोलते वक्त ध्यान देना, संभल कर बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात चल रही है माँ, क्या होती है माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जरा ध्यान से संभल कर बोलना। हजरत मूसा हैरान हुए, फरियाद की, या खुदा, हजारों बार मैं घर से बाहर निकला हूँ, हजारों बार मैंने आपके कहीं से काम किए, आज क्या खास बात है कि मैं ध्यान से संभल कर बोलूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज आई, मूसा
पहले जब तू जाता था ना, घर से बाहर निकलता था, तेरी माँ सिजदे में बैठ जाती थी, फरियाद करती थी कि मेरे बेटे का स्वभाव क्रोधित है, क्रोध वाला स्वभाव है, कड़वे बोल बोलता है कई बार, या खुदा उसे कड़वे बोलों पर पर्दा डाल देना, उसकी सजा उसे मत देना, उसे बख्श देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी देर तू बाहर रहता था तेरी माँ सिजदे करती रहती थी, फरियाद करती रहती थी, और एक माँ की फरियाद खुदा नहीं टाल पाता। मुझे तेरी माँ की फरियाद को मानना पड़ता था, तेरे कड़वे बोलों को संभालना पड़ता था। तुझे कभी उसका हिसाब नहीं रखा गया, तूने क्या क्या किया है, किसका दिल दुखाया है। पर अब तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तू घर से पहली बार बाहर निकल रहा है तेरी माँ के इंतकाल के बाद। अब तेरे पीछे फरियाद करने वाला कोई नहीं है। आज के बाद संभल कर बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक हजरत की माँ, उन माँ की फरियाद बच्चे की 1000 गलतियों को पर्दा डलवा देती है, भगवान को मजबूर कर देती है बख्शने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ की फरियाद की ताकत देखिए, और माँ की दिल की आशीष खुदा से मिला सकती है। एक आशीष, बाबा आनंद सिंह जी के वचन, माँ चाहे कमाई वाली माँ हो, नाम जपने वाली, पुत्र भी लायक हो, माँ की बात मानता हो, अगर माँ के हृदय से आशीष निकल जाए, गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ की ताकत को समझो, और इसी माँ के अगर हद तक कर दी, बेहद भी कर दी। बच्चे माता पिता के आगे बोलते कई बार तो मैंने देखा हाथ तक उठा देते हैं। सोचता हूँ कि क्या होगा इसका, क्योंकि सृष्टि नहीं छोड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्हें हक है हम पर हाथ उठाने का, वो हमारे माता पिता हैं, हमें 1% भी अधिकार नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें तो बोलने तक का अधिकार नहीं है, हम सब बोलते हैं माता पिता के आगे। ये गलतियां हम सब करते हैं, पर जिस गलती का एहसास हो जाए उसके बारे में विचार करना चाहिए कि अगर गलती हो गई है, माँ तो माँ है ना, चरण पे जाके चरण पकड़ लो घर में जाके, और कह दो आज के बाद मैं आगे से नहीं बोलूंगा। वो तो माफ कर देगी, खुदा भी माफ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी ज्ञान हासिल कर लो, जो मर्जी कर लो, धक्के ही धक्के लिखे हैं, यहाँ पर भी वहां पर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगवान क्या कहते हैं बच्चे से? उस फरिश्ते का नाम माँ है, जो तेरे बिना बोले चेहरा पढ़ के सब समझ जाएगी, तेरी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगी। कौन है वो फरिश्ता? माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे फरिश्ते को छोड़कर बाहर तीर्थों पे स्नान करने जाए, भाई साहब गुरदास जी कहते हैं कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ना जप का ना तप का, सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर घर में बैठकर तूने माँ की सेवा कर ली, उसकी खुशी प्राप्त कर ली, 68 तीर्थों का फल तेरी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुंभणवाण। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ
प्यो पर हर नावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी माँ प्यो पर हर नावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी माँ प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी माँ प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी माँ प्यो पर हर नहावड़ा गुर परमेश्वर सार न जाने गुर परमेश्वर सार न जाने माँ प्यो पर हर नावड़ा 68 तीरथ कुंभणवाणी पातशाही 10वीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन सत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंदा हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप
तरा। काल पाए सब जो अवतारा, काल पाए कर बिशन प्रगासा। सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सवारे, सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चेटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान, जब उद करख करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा, जब वह करख करत हूँ कब हूँ। मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने मोजे उदार, तुम सब ही ते रहत निरालम। तुम वेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभव, तांका मूढ़ उचारत भेदा। को पेव न पापद भेदा, तांको कर पान अनुमानित। महामूढ़ कछ भेद न जान, महान देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव, आप आपनी बुध है जेती। तो पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा। कह कुछ सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोराव कई कोपा, अंडज जेरज से तज कीनी। कुछ खान बहु रच देने, कहूँ फूल राजा हव बैठा। समट प्यो संकर बैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्बव, अब रक्षा मेरी तुम करो। असुख संगरो, दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सगल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी पर। इनके दुष्ट दुखत हव मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे। इनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार ते है। आके काल निकटने है, रक्षा होई ताए सब काला। दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला, कृपा दृष्ट संजाय निहारो। आके तापत नगमो हरो, और तो सिद्ध कर्म सब होई। दुष्ट छाछ सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल पास देता है उमारा, जिन नर नाम तिहारो कहा। दुष्ट लोग ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी, सर्व डोर मोह सहाय। दुष्ट लोग ते ले बचाई, खड़ग केत में शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी, सर्व डोर मोह सहाय। दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा। आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुरु का पाया सहज से की मन वजिया वाधाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया। आनंद होआ सतगुरु में पाया। मन मेरा तू सदा रो हर नाले। हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। साहिबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिते सो पावे। तेरी नाम मन सावे नाम
सच्चे सैल क्या नाई घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे शब्द वाजे कला जी करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया मनन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रया भरपूरे बिन वंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद धुरे सलोक पवन गुरु पानी पीता चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 ओ वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया 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 गए मशक्कत काल नानक ते मुखे छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुजी मेरे मन में गुरुजी मेरे तन में गुरुजी हर सांस में गुरुजी धड़कन में मेरा तुझ संग रिश्ता पुराना मैं क्यों ना करूं शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना मैं क्यों ना करूं शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना।
मन में जो चिंता हो। तेरे नाम से मिट जाती है मन में जो चिंता हो। तुम ही भाई बहन अब मेरे, तुम ही माता पिता हो। तुम ही भाई बहन अब मेरे, तुम ही माता पिता हो। ये रिश्ता यूं ही निभाना, मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरु जी तेरा शुक्राना, मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरु जी तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सागर की बस यही तमन्ना, दर तेरे पे गाऊं। ओ सागर की बस यही तमन्ना, दर तेरे पे गाऊं। मुझको दाता इतना दिया, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। मुझको दाता इतना दिया, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। मेरा सपना पूरा कराना, मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरु जी तेरा शुक्राना, मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरु जी तेरा शुक्राना, मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरु जी तेरा शुक्राना, मैं क्यों ना करूं शुक्राना। गुरु जी तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा गुरुजी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।